Hello students, myself Sambre sir, and I am going to put first video of the algebra. First chapter is sets. If anyone having difficulty may ask me or let me know onwards. Okay. So first chapter is set. All of you know what is meant by set. So many times you have heard this word set, just like a dining set, pen set, correct? Then workbook set, and so on. So firstly, we will go for the definition of set. So what is exactly the definition of set? The collection of, set in क्या होता है? Collection of well defined objects is called set. Now let us learn about the well defined. So what do you mean by well defined? Well defined means the objects we are having a definition, we can define it precisely. Correct? For example, days in a week. Okay, days in a week is a set. Now why? It is a collection of well defined days. Now, days are well defined, all of you know. May suppose in our class there are 63 students, and while writing this set, all the 63 students include the same day in that set. Correct? Means कौन सा सेट बन जाएगा फिर वो? We have to write in curly bracket Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Now, either of these, no one can left one of the day, or no one can add some one more. Then all these days are well defined. So this collection is called as a set. Okay? Understand? Then sets of numbers. Okay? So in previous class we have already learned पहला set of natural number. So in most first chapter in standard 8 we have already learned natural numbers. सिर्फ वहाँ पे ये set word इस्तेमाल नहीं हुआ था. ठीक है? So now we have to write these natural numbers in the form of set. So capital N represents set of natural numbers. So don't read as only natural number, it must be read as set of natural number. Then curly bracket, and then we have to write all the natural numbers which we know as 1, 2, 3, 4 and so on. Okay? So dash. Okay. Then second, set of whole numbers. So this also we are learning 8 standard. So it represented by W. Only 0 is added in a set of natural numbers. So 0, 1, 2, 3, 4 and dash. Then third, set of integers. Okay. So what is set of integer? It is represented by I. And all of you know set of integer means all positive natural, their opposite including 0. So it is written as dash minus 3 minus 2 minus 1 then 0 1 2 3 and dash. Understand? This we have already learned these numbers on number line. So middle
0, right hand side of 0 positive natural numbers, and on negative side there are their opposite numbers, means all negative natural numbers. Then fourth, set of rational numbers. Now do you remember rational number definition? Now see what is that. The set of, correct? It is represented by q. See? So it is set of all numbers of the form p upon q, where q not equals to 0, or p or q are integers. Remember this definition we have learned already in a standard in most first chapter. Set of all numbers of the form p by q, means p upon q इस टाइप में रहना चाहिए, q नॉट इक्वल्स टू 0. वो q वो भी हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा, बिकॉज q अगर 0 बन जाता है, सो वी आर नॉट एबल टू डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0. Correct? It becomes meaningless. In 12th standard you all learn that number as infinity. ठीक है, and let it be. And p and q are the integers. Means it may positive natural, it may negative natural number. p may be 0, but q should not be 0. ये 8th standard की definition में पढ़ी. ठीक है, so ये एक सेट होता है. Then fifth set. फिफ्थ क्या होगा फिर? सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल numbers. What is that? We already learned in 8th standard. So it is represented by R. That is set of all rational and irrational numbers. ठीक है, अब इसमें इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन आपको याद आता है या नहीं, देख लो. ठीक है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर एनीवन याद आ रहा किसी को? तो लेट इट बी. मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको पहले से मालूम है तो समझ लेना, अपने दिमाग में बहुत सारा रह गया. ठीक है, सो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर decimal representation is non-terminating and non-recurring type is called irrational number. ठीक है, लेट मी रिवाइज. कैसे? तो ऐसा नंबर मीन्स ऑलरेडी वो रैशनल नंबर होना चाहिए पी बाई क्यू फॉर्म का, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड आफ्टर डिवीजन कौन से टाइप का रहना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप. मीन्स दो चीज़ें. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर शुड नॉट बी 0 वाइल डिवाइडिंग. बराबर है, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल अगर नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन रिकरिंग मीन्स इन कोशंट. जैसे हम डिवाइड करते हैं, कोशंट में आने वाला नंबर कौन से टाइप का रहना चाहिए? नॉन रिकरिंग. मीन्स इन कोशंट देयर शुड नॉट बी अ नंबर whose digits or group of digits are recurred. है ना, रिकर्ड मीन्स रिपीट. ऐसे में जैसे किस टाइप का नंबर नहीं रहना चाहिए? 0.101010, तो इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर. वो रिपीट नहीं होना चाहिए. मीन्स कौन सा टाइप का रह सकता है? 0.10100100 एंड सो ऑन. तो ये हो गया इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें 1 रिपीटेड नहीं है. 1 0 के बाद 2 0 के बाद 3 0 के बाद, इस टाइप से. ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड एज अ इरेशनल नंबर। तो ऐसे रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब पेज नंबर 1 पे बुक में पढ़ लेना कि उसमें सेट कौन से नहीं है, वो उन्होंने दिखा दिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, वेल डिफाइंड मीन्स इसमें एडजेक्टिव अगर सेट में लगा नहीं है, ठीक है, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। और जिसमें एडजेक्टिव लगा है तो उसमें सेट नहीं कहला जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, ठीक है। अब देखो उसमें क्या एडजेक्टिव लगा है, कलेक्शन ऑफ कैसे स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट्स। और कौन से स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के। आप थिंक ओवर इट कि स्मार्ट स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर सकते या नहीं कर सकते, राइट। कोई बच्चा बोलेगा दिखने में अच्छा है तो स्मार्ट है, कोई बोलेगा होशियार है तो स्मार्ट है, कोई बोलेगा बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो स्मार्ट है। सो वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द स्टूडेंट एज द स्मार्ट, है समझ, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो अपने दिमाग को एक चीज़ बता के रखना कि जिस कलेक्शन में एडजेक्टिव लगाए, जैसे क्लेवर स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, टॉल स्टूडेंट, फैट स्टूडेंट्स, बराबर है, रिच फैमिलीज इन वर्धा, पुअर फैमिलीज इन वर्धा, तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन आर नॉट द सेट। लेकिन जिसमें डिफाइन होता है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट में हर एक लड़का या बॉय ले सकता है, तो ही वो कहलाता है वेल डिफाइंड, ओके। देन ऑनवर्ड्स वी आर टू लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। पहली मेथड, फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड। अब इसमें उसका मीनिंग आ गया, सेट लिखाने में जिसमें लिस्ट बनती है उस मेथड को कहा जाता है लिस्टिंग मेथड। जैसे ऊपर वाले सेट हमने लिखा है वो, ठीक है। इसको और दूसरा भी नाम है रोस्टर मेथड, नाम ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, अदर लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो पहली मेथड तो वेरी सिंपल, इसमें लिस्ट बनानी पड़ती, जैसे मम्मी अपने को किराने की लिस्ट देती है या सब्जियों की लिस्ट देती है तो हम उतनी चीज़ें लेके आते हैं। सिर्फ वो कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद कर दिए तो उसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। तो ऊपर वाले जितने भी एग्जांपल्स है अपने लिखे हुए हैं, कौन से ये वाले सेट, दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्टिंग मेथड। एंड डब्ल्यू आई क्यू लिखा नहीं सकते हम, देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन उसका एक वैल्यू के हिसाब से या मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको अरेंज नहीं करा सकते। रियल नंबर को भी मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते, तो उसकी लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्लियर। अब हमको पढ़ना है रूल मेथड, या मैं एग्जांपल बता देता हूँ पहले मेथड का एग्जांपल। नंबर ऑफ या कलेक्शन ऑफ, सॉरी, या सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। आपके दिमाग में आ गया होगा कितने मंथ्स दिखाने पड़ेंगे आपको, 12, सही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करा देते पी से। सो पी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, समझ में आ रहा, अप टू
डिसम्बर। दिस इज कॉल्ड एज अ विच मेथड, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अब समझते हैं हम रूल मेथड को। सेकंड मेथड, रूल मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय रूल मेथड? तो इस रूल मेथड में ऑब्वियसली सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल बनाया जाता है सेट को समझने के लिए, है। तो उस मेथड को बोला जाता है रूल मेथड। ठीक है, तो अभी हमने जो पिछला एग्जांपल ले लिया उसी को हम दिखाते हैं। जैसे p इज इक्वल टू आपको दिया है जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर। ठीक है, अब जैसे इसको पढ़ते बराबर अपने को समझ में आ जाती कि ये 12 मंथ्स है ईयर के, तो इसको रूल मेथड में कैसे लिखा जाए? तो p इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x ऑब्लिक एक्सीड्स मंथ इन अ ईयर। खत्म। कोई कठिन समझ में आ रहा? सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपको बाद में सॉल्व करते वक्त दिक्कत हो सकती है अगर कुछ, तो जिसको समझ में आता है लिस्ट काय की बनी हुई है तो ये इज एबल टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म है रूल मेथड। ठीक है, अब इसको पढ़ा कैसे जाता है? इट इज रीड एज, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना। p इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है ईच सेट ऑफ ऑल। ये राउंड जो मैंने बनाया तो यहाँ पे भी राउंड करता हूँ मैं, इसके मीनिंग ध्यान में रखना है आपको पढ़ते वक्त। p जैसे का वैसा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट का मतलब ईच सेट ऑफ ऑल, एक जैसे का वैसा। देन इसका मीनिंग स्लैश का मतलब, ठीक है, सर्च दैट। ठीक है, मैं उसी के बराबर सिंबल वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जैसे एक्टिविटी में आप करते हो ना, राउंड फॉर राउंड, रेक्टेंगल फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको पढ़ना है आपको सर्च दैट, और बाकी का एज इट इज़ एक्सिस मंथ इन अ ईयर। ठीक, अब इसमें आप बोलोगे ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, रूल कहाँ पे आया? रूल इसमें बनाने, क्योंकि ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, इट इज़ इन ऑफ एग्जाम्पल इन रूटीन लाइफ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको नंबर का एग्जाम्पल बताता हूँ मैथमेटिकल। सेकंड क्यू तो अपना इसमें है, इसको मैं ले लेता हूँ b इज इक्वल टू -3 -2 0 1, सॉरी यहाँ पे -1 चाहिए, -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसमें रूल कैसे लगाते हैं हम। तो इसका लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म। तो b इज इक्वल टू पढ़ते वक्त कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं पढ़ना, b इज इक्वल टू यानी इज सेट ऑफ ऑल x स्लैश यानी सर्च दैट x इज क्या है? इंटीजर। ठीक है, और कौन से नंबर के बीच में? ठीक है, सो इट इज -4 लेस देन, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे ना इसको, देन x लेस देन 4। अब इंटीजर मीन्स इंटीजर ही आने चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है इस सिंबल का -4 और 4 के बीच वाले। ठीक है, यानी x लाइज बिटवीन -4 एंड 4। तो कौन से मिल जाएंगे आपको? -3 -2 -1 0 1 2 3। अंडरस्टैंड? हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। Then nextly we have given types of set. Types of sets. ठीक है, पहला टाइप। तो फर्स्ट टाइप इज, इसमें आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं आपको टाइप बता देता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज कितनी मिल जाएगी? 2 एक्सरसाइज यू आर एबल टू राइट देम। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट ऑनवर्ड्स। पहला टाइप आता है सिंगलटन सेट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सेट? तो
वर्ड का तो मतलब आपको पता है. द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. द सेट containing only one element. What is meant by element? Element means set of हर एक जो नंबर लिखते हैं हम उसमें या ऑब्जेक्ट कॉमा से सेपरेट होता है, इज कॉल्ड एज द एलिमेंट मेंबर ऑफ दैट सेट. ठीक, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. एंड फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले लेता हूँ. ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 2 और एक्स इज नेचुरल नंबर. देखो अभी ए में हमको डीज बनानी है तो कितने नंबर्स उसमें आएंगे. तो ए सेट है एक्स ऐसे लेटर का जो रिप्रेजेंट करता है कि 2 से छोटा है और x ये नेचुरल नंबर है. हमको पता है अभी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. 1 1 के बाद क्या आता है 2. 2 से छोटा से भी एक ही नंबर बनता 1. सो इस सेट में ओनली वन एलिमेंट आने की वजह से इस कॉल्ड एज सिंगलटन सेट. वैसे ढेर सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं. ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं हम x लाइज बिटवीन 1 एंड 3 तो उसमें बनेगा 2. ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है कि जिस सेट में सिर्फ अकेला ओनली सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है इस कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट. देन सेकंड एम्प्टी सेट और नल सेट. इसके देखो अभी कितने नाम हैं. एम्प्टी सेट और नल सेट और फाइल और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट. देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन ढेर सारे हैं. जैसे इस अकेले सेट के 4 नाम हैं. मैं कुछ भी लिखा सकते हो. एम्प्टी सेट और नल सेट और फाई बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एज अ फाई EHI. ठीक है, और एम्प्टी सेट. क्लियरली. अब सिर्फ ये मैं जब लिखाते रहता हूँ तो मोबाइल के नीचे चले जाता है तो थोड़ा सा आपको मेरा सुनाई आते वक्त लिखते वक्त दिखेगा नहीं. अब वो होता कैसे, मैं ऊपर नीचे ये साइमल्टेनियसली देख नहीं पाता. है ना, पेज ख़त्म हो जाता है, मोबाइल की रेंज खत्म हो जाती है. ये थोड़ा सा समझ लेना. थोड़ी देर बाद आप मैं पेज ऊपर करूँगा तो उसमें पूरा रीड करा देना. रिपीटेडली वीडियो देखना अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है. ठीक है. सो एम्प्टी सेट. अब एम्प्टी का तो मीनिंग आपको सबको पता है. एम्प्टी मीन्स खाली. खाली मीन्स जीरो मत बोलना उसमें. जीरो इज़ द एलिमेंट. यानी जिस सेट में कुछ भी नहीं है मीन्स नाइदर एलिमेंट. इसका डेफिनेशन है द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट. ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, फायर. तो करली ब्रैकेट में कंटेन, जीरो मत लिखना है यहाँ पे. ठीक है, फिर इसका एग्जांपल वेरी क्लियर. सेट बिल्डर फॉर्म में लेता हूँ मैं आपको. C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर. ठीक है, और x लेस देन 1. ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा. C ये सेट है x लेटर का. x रिप्रेजेंट कर रहा नेचुरल नंबर, लेकिन बोले x रहना चाहिए लेस देन 0 यानी लेस देन 1 यानी 1 से छोटा. आपको पता है 1 से छोटा एक भी नेचुरल नंबर है नहीं. तो C इज इक्वल टू बन जाता 5 या और एम्प्टी सेट. यानी हम उसमें कुछ लिखा ही नहीं सकते. जीरो भी नहीं लिख सकते वहाँ पे क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्लियर. देन नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट. फाइनाइट का भी डिक्शनरी मीनिंग आपको पता होगा तो सेट फट से समझ में आता है. फाइनाइट मीन्स काउंटेबल. द सेट कंटेनिंग काउंटेबल एलिमेंट्स. काउंटेबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट. ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं उसका. नंबर ऑफ डेज इन अ वीक. सेट ऑफ डेज इन अ वीक.
ये हो गया एग्जाम्पल रूटीन लाइफ का। उसका एग्जाम्पल तो आप फटाफट लिख सकते हो। इसका लिस्ट बनाते हो तो उसमें काउंटेबल आते 7 दिन आएंगे। देन months in a year. Numerically example, a is equal to set of all x such that x is natural number less than 10. क्लियर? तो ए सेट किसका है? एक्स ए लेटर का है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसा रहना चाहिए? लेस देन 10। तो आप कितने नंबर ले सकते हो उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ख़त्म। 10 नहीं ले सकता बिकॉज वर्ड है लेस देन 10, 10 से कम 9 तक गिन सकते हैं, इसलिए ये हो गया फाइनाइट सेट। देन लास्ट इनफाइनाइट सेट। फिर से डिक्शनरी मीनिंग, इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, द सेट containing uncountable elements। ठीक, एग्जाम्पल तो बड़ा सिंपल है, जिसमें ढेर सारे नंबर है, यानी n मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, देन w मीन्स सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, i q और r, ये सभी कहलाते इनफाइनाइट। अब इसमें ध्यान में रखते हो कि ये बहुत ध्यान में रखना है कि जिसमें डैश 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 आता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, देखो इसमें गलती कहाँ कर लेते हैं हम सब, जो b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 100, ऐसे अगर लिखा है तो डोंट राइट इट एज ए इनफाइनाइट सेट, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। क्यों? डैश 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 तो है, लेकिन उसके बाद में क्या है? 100 है, मीन्स आप इन पूरे नंबर को गिना सकते हो, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ाई करते वक्त अपने दिमाग में मत रखना कि डैश 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 जिस सेट में होता है बोले वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ट्रू। देन लास्ट है इक्वल सेट। व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट्स? इक्वल सेट्स मीन्स द सेट्स हैविंग exactly same elements, correct? Don't keep it in mind exactly same number of elements, गलत करा देगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन है the sets containing exactly same elements। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जांपल लेना सेट समझने के लिए, नहीं कैसा होता है पहचानने में, एक जैसे सॉल्व करते हो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो ले लेते हैं। देन b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to n x less than 5। Then c is equal to set of all x such that x belongs to I 0 less than x less than 5। और फिर आप इसमें देखोगे तो ये हो गया लिस्टिंग, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लिस्ट बनाते हैं तो देखो कितने लिखाया जाएगी। सेट ऑफ n मीन्स, हाँ ये बिलोंग्स टू, ये सिंबल पता है आपको, इस सिंबल को बोला जाता है बिलोंग्स टू, सी के पेट में दंडी। ठीक है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये बिलोंग्स टू क्या होता है ना, इंग्लिश में पता है ना आपको, बिलोंग मीन्स उस सेट में प्रेजेंट रहना। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर के सेट में आता है, और एक्स लेस देन 5, यानी 5 से कम मुझे नेचुरल नंबर लिखाने हैं, तो इसको लिस्ट बनाओ तो कितना बन जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। देन इसमें अगर लिखा दो तो एक्स बिलोंग्स टू आई मीन्स एक्स ये इंटीजर है, और इस सिंबल का मतलब होता है एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 5।
तो 0 एंड 5 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं देखो, 1 2 3 4, इसलिए तीनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो आप लिख सकते A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ऐसे में अंडरस्टैंड। तो इन पूरे इसमें आपको 2 एक्सरसाइज मिली, तो 2 एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व 1.1 एंड 1.2। प्रॉब्लम में जिसमें दिक्कत जाती है, जो आप नहीं लिख पाते हो, ठीक है, तो इसमें आप उसको लिखाओ कर, और कहाँ गलत है मुझसे पूछो, या जो प्रॉब्लम आपको नहीं आता है, टोटली नहीं कर पा रहे आप, उसको समझा दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फ़ोन पे भी कर सकते हैं या लिखा के भी दे सकते हो। वैसे भी ये अरेंजमेंट करने में मेरे को 15 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम उसमें जा सकता है। अब इसमें कहीं मराठी मंथ्स के नाम वगैरह आते हैं, तो ये आप अपने मम्मी पापा को भी पूछ सकते हो सकता है आ जाए कहीं। तो लिस्टिंग मेथड में आ सकता है, हाँ है। पहले एक्सरसाइज में 4th प्रॉब्लम है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, ऐसा दिया है। तो मराठी में वो कौन से महीने रहते हैं वो पूछ लेना, नहीं तो मुझे पूछना, फिर मेरे को बताना पड़ेगा, या मराठी के मैडम को पूछ सकती है आप, ठीक है। ओके, देन 2 एक्सरसाइज की कोशिश करो, ठीक है। आपके पास पूरा अभी कितना मेरे ख्याल से ट्यूसडे को पीरियड है, ओके।